Hello, my dear students of class 8. Welcome to Imavate Academy. This is lecture number 3 of the ongoing series of your chapter number 1 of physics. Chapter number 1 of physics is matter and उसी series का हमने lecture 1 और lecture 2 already upload कर दिया है. I hope you people have watched that. और ये हमारा आज का lecture 3 है. लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर नहीं देखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देख लो. द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. लिंक को क्लिक करो, यू विल गो टू द प्लेलिस्ट एंड वहां पर तुम्हें मिल जाएंगे lecture 1 and lecture 2. First, watch them and then proceed with lecture 3. In lecture 2, I had given a homework. I had told you people to send me the homework in this email. A lot of children sent me, but I have told you that the first person who would send me the homework, I'll take the name of that person in lecture 3. So, Pooja Thakur from Sarvodaya Vidyalaya, Thiruvananthapuram, Kerala. She sent me first. Congratulations, Pooja. Keep it up. Let us begin today's lecture number 3. You can see a list of few solids, liquids, and gases. These all substances are solids. These all substances are liquids, generally at room temperature. These all are gases, right? तो तुम्हें इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, right? What type of question can you get in your exam based on this topic? That's an important thing. Question आता है most commonly, classify the following into solids, liquids, and gases, and they will provide you a list, okay, of different substances. बहुत सारे नाम रहेंगे उसमें से. हो सकता है एक नाम हो कैल्शियम का, दूसरा नाम हो ग्लिसरीन का, तीसरा नाम हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एक ऑप्शन हो तुम्हारा अमोनिया का, फिर कोई हाइड्रोजन लिखा हुआ है कहीं. इन दिस लिस्ट डिफरेंट सब्सटेंसेस का नाम है. सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है. सो इफ यू डोंट नो विच सब्सटेंस इज विच स्टेट, इज इन विच स्टेट, you will be unable to classify, right? And you see a lot of names are new for you. I think शायद पहली बार सुन रहे हो कुछ ऐसे नाम. हीलियम पहले सुने हो, आर्गॉन पहले सुने हो. किसने किसने पहले ये सब नाम सुना है, एंड किसके किसके लिए ये सारे नेम्स न्यू है. फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग टू हीलियम, आर्गॉन, नाइट्रिक ऑक्साइड. यू टेल मी, कमेंट बिलो. ओके, एनीवे, तो अगर नहीं सुने हो, पहली बार सुन रहे हो, तो अब तो तुम्हें याद करना है. These substances are gases. Steam is obviously gas, you know, no doubt. Air is gas, everyone knows. Oxygen is gas, hydrogen is gas, chlorine is gas, nitrogen is gas, ammonia is gas. इसमें से तो बहुत सारे ऐसे नाम है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है. Sulfur dioxide is a gas. Nitric oxide is a gas. Helium is a gas. Argon is also a gas. Okay. Similarly, there are many more gases. ये तो बस कुछ ही है, ऐसे तो बहुत है gases. Liquids में आओ. Water is liquid. सबको पता है, सबको पता है. बट आगे का ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन मतलब आगे के सब्सटेंसेस देखते हैं. बेंजीन, बेंजीन इज अ लिक्विड. क्लोरोफॉर्म इज अ लिक्विड. और जानते हो क्लोरोफॉर्म से क्या होता है? इसको इनहेल करने से अनकॉन्शियसनेस हो जाता है. समटाइम्स द विकेड पीपल, जो यू नो लोगों को बेहोश करके उनके चीजों को लूट लेते हैं. ट्रेन में कई बार सुना होगा ना, ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसको बेहोश कर दिया गया और उसकी सारी चीजों को लूट लिया गया. सो वो क्या सूंघा के उसको बेहोश किया जाता है? क्लोरोफॉर्म. ओके, ऐसा मार्केट में तुम्हें इजीली नहीं मिलेगा, बिकॉज इट नीड्स लाइसेंस इफ यू वांट टू परचेज इट, बिकॉज इससे बहुत सारे इसका मिसयूज होते हैं. ओके, एनीवे, तुम्हारे नॉलेज के लिए मैंने बोल दिया क्लोरोफॉर्म, एंड दैट इज अ लिक्विड. ओके, रूमाल पर उसको थोड़ा सा लेकर पीपल, द विकेड पीपल विल कीप इट ऑन द नोज, एंड द पर्सन inhaling chloroform, vapors of chloroform will fall unconscious. Anyway, oil is a liquid, honey is a liquid, glycerine is a liquid, hydrochloric acid is a liquid, nitric acid is a liquid, alcohol is a liquid, spirit is a liquid, Dettol, obviously liquid. Solids में ice, solid, aluminium, silver, calcium, gold, iron, sodium chloride, sugar, wood, plastic, wax. So a lot of options are all very common, these are solids. इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे. आगे बढ़ते हैं. चेंज ऑफ स्टेट. सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से गैस में उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड गैस से भी हम उसके लिक्विड फेज में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट. दिस इज वेरी वेरी कॉमन. नो
नीड टू एक्सप्लेन मच। चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? अगर तुम्हारे पास आइस है, दैट इज सॉलिड, if you melt the ice it will change to water which is liquid, and if you boil the water then it will boil off and it will change to vapor state, यानी steam। वेपर बोलो, स्टीम बोलो, वाटर वेपर बोलो, चाहे स्टीम बोलो, एक ही चीज है, एंड दैट इज गैस। तो तुम तो एक ही चीज है ना, H2O ही है ना। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। अगर नहीं पता तो अभी जान लो, या फिर अभी जानने की जरूरत भी नहीं है, 9 में जानोगे, अभी तो 8 में हो। एनीवे, द थिंग इज सेम, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है। सिर्फ क्या चेंज हुआ है? स्टेट चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस को हम कर सकते हैं, सिर्फ आइस का ही नहीं, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। ओके, लाइक प्लास्टिक इज इन सॉलिड, बट इफ यू मेल्ट द प्लास्टिक इट विल चेंज टू लिक्विड। प्लास्टिक को भी हम मेल्ट कर सकते हैं, वैक्स को मेल्ट कर सकते हैं, है ना। तो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्शन को हम बोलते हैं मेल्टिंग। You see, there's a flow chart. This is a very important flow chart. They generally give this flow chart in exam. They will not write the name of the process like melting, freezing. इसको नहीं लिखेगा. They will keep it blank. They'll ask you to write the name of the process. So you have to take a note of it. Very important. I'll zoom it and I will explain it. So solid converting to liquid. You see the arrowhead. It is from solid towards liquid. उस प्रोसेस में क्या होता है? हीट इज एब्जॉर्ब। कहाँ हीट एब्जॉर्ब होता है, कहाँ हीट रिजेक्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट मिक्स द थिंग्स। जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, जैसे आइस है, उसको तुम क्या करोगे कि ये लिक्विड में चेंज हो जाए? उसको तुम हीट करोगे, सो द आइस विल एब्जॉर्ब सम हीट। उसको तो ठंडा नहीं ना करोगे आइस को, उसको तो हीट दोगे। हीट देने से वो लिक्विड में चेंज होगा, यानी आइस ने हीट एब्जॉर्ब किया। सो द सॉलिड क्या किया? हीट एब्जॉर्ब किया एंड देन इट चेंज टू लिक्विड। बट इफ यू हैव लिक्विड, तुम्हारे पास वाटर है, वाटर है लिक्विड, यू वांट टू चेंज इट टू आइस, तो यू विल नॉट हीट इट, यू विल कीप इट इन द फ्रिज। उसको ठंडा करोगे, मींस इस लिक्विड के अंदर जो हीट है उसको निकालोगे तुम। यू विल टेक आउट ऑल द हीट फ्रॉम द वाटर एंड ओनली देन इट विल चेंज टू आइस। तो हीट इस वाटर ने रिजेक्ट किया, तब रिजेक्ट करने के बाद यानी हीट को लूज करने के बाद, after losing all the heat inside it, not all the heat, but a large amount of heat from inside it, it will change to solid. तो हीट को लूज करने के बाद यानी रिजेक्ट करने के बाद वो सॉलिड में चेंज हुआ। दैट इज written over here, that liquid changing to solid will happen when heat is rejected by the liquid, and that process is known as freezing. उसको freezing बोलते हैं, इजी है। अब इधर देखते हैं, लिक्विड चेंजिंग टू गैस इज नोन एज वेपोराइजेशन। मतलब इसका एक दूसरा नाम भी है, बॉइलिंग। बॉइलिंग इज ऑल्सो नोन एज वेपोराइजेशन। लिक्विड को हम बॉयल करेंगे तभी वो वेपर में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा। इसका उल्टा, वेपर या गैस चेंजिंग टू इट्स लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन। एंड सी द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड एंड इन विच हीट इज लॉस्ट। लिक्विड टू गैस कन्वर्शन में हीट इज एब्सॉर्ब्ड, isn't it? If you have a liquid, you need to change it to vapor. What will you do? You will give heat to it. इसको बॉयल करोगे तो हीट दोगे ना, दैट मीन्स दिस लिक्विड विल एब्सॉर्ब हीट, राइट। एंड इसका उल्टा, तुम्हारे पास वाटर वेपर है, उसको ठंडा करोगे, इट विल चेंज टू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, इट विल चेंज टू लिक्विड, दैट मीन्स। तो तुमने उसको उससे हीट निकाला, दैट मीन्स द गैस ऑन रिजेक्टिंग हीट will change to liquid, and that process is known as condensation. Now, some substances on heating directly change to gas. There are certain substances, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम मैं बता दूंगा। वैसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली जब उसको हीट करते हो, मतलब उसको जब हीट करते हो तो डायरेक्टली वो गैस में चेंज हो जाता है। सी आइस में ऐसा नहीं होता। इफ यू हैव आइस, उसको हीट करोगे, पहले वो लिक्विड में चेंज होगा यानी वाटर में चेंज होगा, एंड देन फर्दर उसको हीट करोगे, फिर वो बॉयल होकर गैस में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। सो इन द मिडिल देयर इज अ स्टेप कमिंग, दैट इज लिक्विड। But there are few substances like, now I'm telling the names, two names I'm telling. One is naphthalene balls. Naphthalene, रुको स्पेलिंग ठीक से लिखने दो। Naphthalene. So naphthalene is a substance till
द स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट. NaPHTHALENE. हाँ, now it is correct. Naphthalene is a substance which is in solid state, but when you heat it, it will directly change to gas. It will not change to liquid. Similarly, you have camphor. Camphor, जिसको हिंदी में कर्पूर बोला जाता है. People use it in पूजा. कर्पूर, कई बार कपूर भी बोलते हैं. Camphor, that is also a substance on heating it changes to gas. दो नाम मैंने बोला, और एक नाम मैं बोल देता हूं, अमोनियम क्लोराइड. एक सब्सटेंस है अमोनियम क्लोराइड. This is a substance in solid. When you heat it, it will directly change to gas. So these three substances, take a note of it. बस सुनो नहीं, देखो नहीं, लिखो. Naphthalene, camphor, ammonium chloride. These are substances which sublimes on heating. Sublimes on heating. Sublimes मतलब कि ये कौन सा प्रोसेस करते हैं? Sublimation. Since they do sublimation, sublimation का मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है. उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन. एंड इन दिस प्रोसेस हीट इज एब्सॉर्ब. ऑब्वियसली तुम हीट करोगे नैप्थलीन को, तुम हीट करोगे कैम्फर को, तुम हीट करोगे अमोनियम क्लोराइड को, मतलब ये सब्सटेंसेस हीट एब्सॉर्ब करेंगे, देन ओनली दे विल सब्लाइम. These substances which sublimes on heating, sublime का मतलब समझ रहे हो ना, means they will directly convert to gas without first converting to liquid. So these substances are known as sublimable substances. Sublimable substances. नाम याद कर लिया. सब्लिमेशन का डेफिनेशन समझ में आ रहा है? अच्छा, डेफिनेशन हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन आगे लिखेंगे, क्योंकि हर एक डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म का होना जरूरी है, उसका हम आगे जिक्र करेंगे. वो टर्म है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हर एक कन्वर्शन, मेल्टिंग हो, फ्रीजिंग हो, वेपराइजेशन हो, कंडेंसेशन हो, सब्लिमेशन हो, डिपोजिशन हो, हर एक का हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लिया कि विच प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, विच कन्वर्शन इज नोन बाय विच प्रोसेस. नाम समझ में आ गया, किसको सब्लिमेशन बोलते हैं, क्या स्टेट किस स्टेट में चेंज हो रहा है, तब हम सब्लिमेशन बोलते हैं. सब्लिमेशन का उल्टा इज डिपोजिशन. व्हेन दैट गैस इज कूल्ड मींस हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द गैस एंड देन इट डायरेक्टली चेंजेस टू सॉलिड. ऐसा भी सारे सब्सटेंसेस में नहीं होता, कुछ में होता है. Okay, like camphor, again the options are same. I mean examples are same. Camphor, naphthalene and ammonium chloride. ये डायरेक्ट इनके जो वेपर्स है इसको ठंडा करो, they will directly change to solid. That means they will directly exhibit deposition, and in that heat is rejected. I hope this flowchart is crystal clear. The definition is here. Change of state means the process of change from one state to another state, either by absorption or rejection of heat. तुमने देखा ना, या तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर हीट रिजेक्ट हो रहा है सब्सटेंस के द्वारा. सो आइदर बाय एब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. अभी मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है. जब भी चेंज ऑफ स्टेट लिखो, चाहे कोई भी स्टेट चेंज हो, मेल्टिंग हो, फ्रीजिंग हो, वेपराइजेशन हो, कंडेंसेशन हो, सब्लिमेशन हो, डिपोजिशन हो, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है. therefore it is we are writing that by absorption or rejection of heat at a constant temperature is called change of state. Simple. We will discuss on this term even more elaborately. लेकिन फिलहाल के लिए ये याद कर लिया कि क्या होता है चेंज ऑफ स्टेट. मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं, one state to another state, either by absorption of heat or rejection of heat at a constant temperature. This I will explain more elaborately. Now you just understand that this phenomenon, absorption or rejection of heat, will take place at a fixed temperature. Temperature will not change, at a constant temperature. This process is known as change of state. Now the first definition in this change of state we will study is melting. मेल्टिंग का डेफिनेशन देखते हैं, और हम एक एक्सपेरिमेंट से मैं तुम्हें समझाऊंगा कि व्हाई आर वी राइटिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. हाउ डू वी नो दैट मेल्टिंग हैपेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड व्हाई ओनली मेल्टिंग, एनी चेंज ऑफ स्टेट हैपेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया गया है, इसको देखा गया है. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है दैट
कोई भी चेंज ऑफ स्टेट हो वो फिक्स्ड टेम्परेचर पर होता है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर में होता है. टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग एज वेल एज फ्रीजिंग, एंड I will explain you that how we have experimentally got this result, that this change of state, whether it is melting or freezing, happens at a constant temperature. तो melting का जो definition है बहुत simple है. It is the change of solid state, change from solid state to the liquid state. इतना लिखना काफी नहीं है. ऑन हीटिंग या फिर ऑन कूलिंग, तुम इस चीज को हीट करोगे सॉलिड को या कूल करोगे? ऑब्वियसली ऑन हीटिंग, सॉलिड को हीट करोगे. फिर भी काफी नहीं है, ये लिखना बहुत जरूरी है. एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग. सो द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग हैज थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स. वन इज सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. कौन सा स्टेट किस स्टेट में चेंज हो रहा है? सॉलिड टू लिक्विड, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट. दूसरा, ऑन हीटिंग, मतलब हीट कर रहे हो या कूल कर रहे हो, वो लिखना है. तीसरा तो ये लिखना ही है एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर. कोई भी चेंज ऑफ स्टेट हो वो हमेशा एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर ही होगा, एंड दिस मस्ट बी इन योर डेफिनेशन. नाउ दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इन विच दिस मेल्टिंग विल हैपन, क्योंकि हमने तो ये पढ़ लिया कि फिक्स्ड टेम्परेचर में ही मेल्टिंग होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. तो हर एक सब्सटेंस जो मेल्ट करता है वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर में मेल्ट करता है, and that fixed temperature is known as melting point of that solid. जैसे आइस है, आइस will melt at 0 डिग्री सेल्सियस ओनली. मीन्स जब तक आइस मेल्ट हो रहा है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. तो एंटायर आइस विल मेल्ट एट दिस फिक्स टेम्परेचर ओनली, 0 डिग्री सेल्सियस. अभी एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं, घर में भी देख सकते हैं. तो इस 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में आइस मेल्ट करता है. तो क्या लिखा हुआ है देखो, ये तो मेल्टिंग का डेफिनेशन यहां कंप्लीट हो गया. अब आगे क्या लिखा हुआ है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड विदाउट फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, फिक्स टेम्परेचर है. उस फिक्स टेम्परेचर में जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, मींस मेल्टिंग हो रहा है, that fixed temperature is called melting point of the solid. So this is the definition of melting point. So in this paragraph we have two definitions. One is the definition of melting, this is the definition of melting, and this, the temperature at which a solid changes into liquid without further increase in temperature is called melting point of the solid. This is the definition of melting point. मेल्टिंग पॉइंट यानी वो फिक्स टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर मेल्टिंग होता है, सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड. एग्जाम्पल, मैंने जो एग्जाम्पल अभी बताया था, आइस विच इज सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर या लिक्विड. ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस ओनली. जो आइस है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, और जब वो वाटर में चेंज हुआ, द फर्स्ट टेम्परेचर विच इट अटेन्स इवन व्हेन इट इज इन लिक्विड स्टेट इज 0. फिर उसके बाद धीरे धीरे 0 से इंक्रीज होगा अगर हम हीट दे रहे हैं तो. लेकिन जो चेंज है आइस हुज टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, when it is completely melted at that very instant of time, that very point of time, जब पूरा आइस वाटर में चेंज हुआ, तब उस वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है. उसके बाद फर्दर हीट करेंगे तो फिर इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. कुछ देर बाद हम देखेंगे कि 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर 6 डिग्री सेल्सियस हो गया. दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट process in which the ice is changing to water. So ice at 0 degree Celsius, when it just changes to water, at that very point of time the temperature of water is 0 degree Celsius only. That means this conversion ice to water happens at 0 degree Celsius only, fixed temperature. The temperature has not changed, right? Ice has changed to water, state has changed, temperature has not changed, because change of state always takes place at a fixed temperature. समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने यहां पर बोला था चेंज ऑफ स्टेट के लिए यहां पर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट विल हैपन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर ओनली, कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली. नो डाउट? अंडरस्टूड? क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, नाउ
Here is that experiment which will explain you this thing. Take a test tube. एक टेस्ट ट्यूब लो, फिगर को ध्यान से देखो, यहां पर एक है टेस्ट ट्यूब है. This test tube has some wax. Put some wax in the test tube. Okay. Clamp the test tube in a vertical stand and place the test tube in a beaker of water placed on a wire gauze at a tripod stand. You can see there is a beaker here in which I have put some water, and I have dipped this part of the test tube inside that water, and the test tube has wax. Also has a thermometer that would read the temperature of the wax. Clamp a thermometer in the same vertical stand and insert the thermometer in the test tube such that the bulb of the thermometer is inside the wax. फिगर नंबर को इग्नोर करो. तो ध्यान से देख रहे हो, ये जो बल्ब है थर्मामीटर का, ये इस वैक्स के अंदर डिप किया हुआ है. मीन्स द थर्मामीटर विल रीड द टेम्परेचर ऑफ द thermometer will read the temperature of the wax, right? तो वैक्स तो सॉलिड होता है, तो अब धीरे धीरे उसको हम हीट दे रहे हैं. तो जब वो सॉलिड स्टेट में था वो वैक्स, तब उसका जो टेम्परेचर था वो कुछ होगा, फिर हम उसे हीट दे रहे हैं, तो ग्रेजुअली क्या होगा, द वैक्स विल स्टार्ट मेल्टिंग. अच्छा, हीट द बीकर ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर, नीचे बर्नर है, एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर आफ्टर एवरी मिनट. हर एक मिनट के बाद हम टेम्परेचर का रीडिंग ले रहे हैं, तो हमारा रीडिंग कुछ इस तरह से आएगा. चल रहा, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया देखना, देन द टेम्परेचर ऑफ द वैक्स वाज 25 डिग्री सेल्सियस. फिर एक मिनट बाद देखा तो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया. टेम्परेचर इंक्रीज किया, वैक्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी मेल्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ. नॉट a part of the wax has started to melt. No, melting has not started. वैक्स का टेम्परेचर बस इंक्रीज हो रहा है अभी. जैसे तुम्हारे पास अगर एक लोहा का टुकड़ा है, उसको गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा, वो गर्म होगा ना, इट विल नॉट स्टार्ट मेल्टिंग. वो गर्म होगा पहले, बहुत हीट करने के बाद फिर ये आयरन बार मेल्ट होगा, जो हम घर में उतना हीट कर नहीं सकते. बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में हम उतना हीट प्रोड्यूस करते हैं. एक आयरन को हम हीट देंगे तो वो सिर्फ गर्म होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो यहां पर भी वही हो रहा है, वैक्स इज नॉट मेल्टिंग इंस्टेंटली, ओनली इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. आफ्टर 2 minutes इट्स टेम्परेचर हैज बिकम 35 डिग्री सेल्सियस. देखो इंक्रीज किया ना, 25 से 30, 30 से 35. एट थर्ड मिनट, आफ्टर 3 minutes, टेम्परेचर इज 40, देन 45, देन 50, ऐसे इंक्रीज कर रहा है. 6th मिनट में देखो, टेम्परेचर इज 55 डिग्री सेल्सियस. बट नाउ यू सी द मैजिक. At the 7th minute also the temperature is 55 degrees Celsius. Oh my God, temperature has not increased. After every 1 minute the temperature is supposed to increase. यहाँ increase हो रहा है, increase हो रहा है, increase हो रहा है, increase हो रहा है. 55 डिग्री सेल्सियस में आकर वो increase नहीं हो रहा है. यानी सिक्स्थ मिनट में जो टेम्परेचर उसने अटेंड किया, उसके बाद कुछ मिनटों तक द टेम्परेचर वॉज कॉन्स्टेंट. At 8th minute also it is 55 degree Celsius. 9th minute also it is 55 degree Celsius. ये जो ड्यूरेशन है from 6th minute to 9th minute, this is that duration when I will see that the wax is melting. मैं आंखों से देखूंगा, yes, वैक्स मेल्ट होना स्टार्ट हुआ 6th मिनट में. उसके पहले मेल्ट नहीं हो रहा था, उसके पहले वो सॉलिड स्टेट में था, उसका सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, मेल्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ था. मैं आंखों से देख सकूंगा कि 6th मिनट में ही वो पिघलना स्टार्ट हुआ, मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, और पूरा वो मेल्ट कर गया 9th मिनट में. मैं देखूंगा कि जैसे ही 9th मिनट हुआ, ऑल द वैक्स इज मेल्टेड. नाउ देयर इज नो सॉलिड पार्ट लेफ्ट, पूरा मेल्ट हो गया. एंड ये जो पूरा मेल्टिंग का प्रोसेस हुआ, उस दौरान कुछ भी टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ. द फिक्स टेम्परेचर वॉज देयर, 55 डिग्री सेल्सियस वॉज देयर ड्यूरिंग द एंटायर मेल्टिंग प्रोसेस. पूरे मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट था. सो दिस प्रूव्स दैट मेल्टिंग हैपेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. यू कैन डू दिस फॉर आइस ऑल्सो. दिस इज नॉट ओनली फॉर वैक्स. इफ यू टेक सॉलिड आइस, आइस के क्यूब्स ले लो, उसमें थर्मामीटर डाल दो, तो टेम्परेचर तुम्हें 0 डिग्री सेल्सियस दिखेगा. आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. इसको हीट दो तो तुम्हें दिखेगा कि आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, ice will start melting, but the temperature will remain zero only.
जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं कर जाता तब तक हीट देने के बावजूद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेल्टिंग हो रहा है ना, द आइस इज चेंजिंग टू वाटर, यू विल सी ग्रेजुअली द आइस इज चेंजिंग टू लिक्विड। जब तक पूरा आइस लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर वही जीरो ही रहेगा। दैट मीन्स द एंटायर मेल्टिंग ऑफ द आइस टेक्स प्लेस at this constant temperature, which is 0 degrees Celsius. So this experiment can be valid for any solid. Any solid melts, not only wax, not only ice, any solid melts at a constant temperature. And why only it melts? Any state change, suppose freezes का भी बात कर रहे हैं, any substance freezes at a constant temperature. कोई भी change of state हो, boiling हो, ठीक है, फ्रीजिंग हो, एक्सेप्शनल एक है वो है इवेपोरेशन, वो एक अलग प्रोसेस है। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल्सो इन योर सिलेबस। तो वो आगे हमें पढ़ना है, आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। बट ये जो सारे प्रोसेस हैं जिनका नाम आज तुमने फ्लो चार्ट में पढ़ा है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, these 6 processes they take place at a constant temperature. तो अभी एक एक्सपेरिमेंट से तुमने समझ लिया ना, हाउ डज मेल्टिंग टेक प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एक सैंपल ऑब्जर्वेशन भी था। तो कंक्लूजन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस यू विल नोट दैट वैक्स मेल्ट्स एट 55 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विच हीट इज सप्लाइड। हमने हीट तो सप्लाई किया बट टेम्परेचर डज नॉट राइज, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं किया। Thus, the melting point of wax is 55 degrees Celsius. Melting point मतलब समझ रहे हो ना, melting point means that fixed temperature at which melting takes place. The fixed temperature at which melting took place was 55 degrees Celsius. So we are saying that the melting point of wax is 55 degrees Celsius. After the melting of the whole wax, the temperature begins to rise. देखो पूरा मेल्ट हो जाने के बाद फिर 10th मिनट में टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 60, फिर 65, फिर 70, फिर वैसे फर्दर इंक्रीज होगा। लेकिन बीच में जब तक मेल्टिंग हुआ था तब तक टेम्परेचर वॉज कांस्टेंट। क्लियर? नो डाउट, सिंपल। नाउ व्हाट इज फ्रीजिंग? इट्स द ऑपोजिट ऑफ मेल्टिंग। एवरीथिंग अदर ऑल अदर कॉन्सेप्ट्स आर सेम। कांस्टेंट टेम्परेचर में होगा, हीट यहां पर रिजेक्ट होगा, चेंज ऑफ स्टेट यहां पर लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट होगा, है ना। वहां पर क्या था, सॉलिड टू लिक्विड था, या लिक्विड टू सॉलिड है फ्रीजिंग में। कूलिंग कर रहे हैं, उधर क्या था, हीटिंग था, इधर है कूलिंग। ये बात बिल्कुल सेम होगा एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। इसको लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू लूज योर मार्क्स। बाय रिजेक्टिंग हीट, है ना, हीट रिजेक्ट किया मतलब कूल किया हमने उसको। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड विदाउट फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर। देखो सेम ही चीज है, विदाउट फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर मतलब कि आगे इसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं कर रहा है, हम उसे ठंडा तो कर रहे हैं लेकिन वो टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब उस दौरान उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। कब? जब लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड, सॉलिड में चेंज हो रहा है, मींस फ्रीजिंग हो रहा है, द टेम्परेचर फिक्स्ड है, एंड दैट फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्लियर है? इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, सिंपल। एग्जाम्पल दिया हुआ है, वाटर विच इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजेस टू फॉर्म आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस बाय रिजेक्टिंग हीट। तो एक चीज तुमने देखा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का विच इज 0 डिग्री सेल्सियस, वही मेल्टिंग पॉइंट भी है आइस का। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर? जिस टेम्परेचर में आइस मेल्ट करता है उसी टेम्परेचर में वाटर फ्रीज भी करता है, टेम्परेचर सेम है। 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एज वेल एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो। अच्छा, इसको एक्सपेरिमेंटल डेटा से प्रूफ किया जा सकता है। अभी अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था वैक्स से चिल्ड्रन, द सेम एक्सपेरिमेंट नाउ कंटिन्यूज फर्दर। तुमने अभी पूरा वैक्स को मेल्ट कर दिया, ओके। इमेजिन दैट यू आर रियली डूइंग इट, देन ओनली यू विल फील द यू नो इंटरेस्ट, यू विल गेट द इंटरेस्ट, तुम्हें मजा आएगा तभी। कि एक्सपेरिमेंट तुम करो, इमेजिन करो कि तुमने पूरा आइस को, आई मीन वैक्स को, आइस नहीं है वैक्स है, पूरा वैक्स को मेल्ट कर दिया है। दैट मीन्स मेल्ट करने के बाद भी टिल 12th मिनट यू हैव हीटेड इट, नाउ द टेम्परेचर ऑफ द वैक्स इज
70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर में तुमको दिख रहा है 70 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू रिमूव दिस बर्नर, ये बर्नर जो है इसको बंद कर दो, रिमूव कर दो। रिमूव कर दिया, अब धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, कूल होगा, ठंडा होगा धीरे धीरे, क्योंकि हमने हीट करना बंद कर दिया। तो अब टेम्परेचर कूल होगा। जैसे कूल हो रहा है मींस वी आर ट्राइंग टू सॉलिडिफाई द मॉल्टन वैक्स। ये जो वैक्स है अब इसको हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे ये अब वापस से सॉलिड में चेंज हो जाए। अभी तो लिक्विड में है ना, मेल्ट कर दिया है तो लिक्विड स्टेट में है। अब हम चाह रहे हैं कि वो धीरे धीरे ठंडा हो, ठंडा हो, ठंडा हो, और वैक्स अभी सॉलिड बन जाए। तो जब वो सॉलिड बन रहा है दैट इज अ चेंज ऑफ स्टेट, दैट मीन्स फ्रीज हो रहा है। द मोमेंट द ड्यूरेशन व्हेन इट इज फ्रीजिंग, मतलब सॉलिड बन रहा है, फ्रीज हो रहा है, दैट विल हैपन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दैट इज आल्सो 55 डिग्री सेल्सियस। अब इसका कुछ रीडिंग ऐसे आएगा, एक्सपेरिमेंट देखो, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं। इन दिस एक्टिविटी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेल्टेड वैक्स, जो मेल्ट कर गया वैक्स, हैज रीच्ड 70 डिग्री सेल्सियस, रिमूव द बर्नर। 70 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, बर्नर हटा दिया तुमने। अलाउ द बीकर टू कूल, उसको ठंडा होने दो अपने आप, एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द वैक्स आफ्टर एवरी मिनट। तो देखोगे टेम्परेचर अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। 70, शुरू में 70 था, व्हेन द टाइम वाज 0 मिनट्स, मींस व्हेन यू स्टार्टेड द ऑब्जर्वेशन, that is 0 minutes. And then after 1 minute, the temperature is 65 degrees Celsius. After 2 minutes, temperature has decreased even more. 60 हो गया, फिर और डिक्रीज हुआ, 55 हो गया। अब 55 जब हुआ, that happened at the third minute. फोर्थ मिनट में मैंने देखा कि स्टिल 55, हाँ फर्दर डिक्रीज नहीं हो रहा है। अब जब वो डिक्रीज नहीं हो रहा है उस दौरान, मतलब फ्रॉम थर्ड मिनट टिल सिक्स्थ मिनट, सिक्स्थ मिनट में भी देखो टेम्परेचर इज 55 ओनली। The temperature did not fall any further. That means during this duration, third minute to sixth minute, during this duration, the temperature was fixed. And it was during this duration, freezing took place. Means the molten wax changed to solid. तो थर्ड मिनट में वो सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हुआ, और सिक्स्थ मिनट में वो पूरा सॉलिड में चेंज हो गया। सॉलिड में पूरा चेंज होने के बाद उसका टेम्परेचर फर्दर कूल्ड हो रहा है, बिकॉज फर्दर एनी स्टेट चेंज इज नॉट हैपनिंग, सो टेम्परेचर इज चेंजिंग। दैट मीन्स जब स्टेट चेंज होगा तब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब स्टेट चेंज हो रहा था, फ्रीजिंग हो रहा था, टेम्परेचर वॉज कॉन्स्टेंट। मेल्टिंग के केस में भी देखा, फ्रीजिंग के केस में भी हमने यही चीज देखा। कंक्लूजन क्या है बच्चा? In the above observations, you will notice that melted wax changes into solid wax, that is, it freezes at 55 degrees Celsius. When the temperature does not fall further on heating, वहां पर रुक गया था, further fall नहीं हो रहा था टेम्परेचर का। After the complete wax has frozen, its temperature begins to fall again. पूरा वैक्स जब फ्रोजन हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया, एंड देन इट्स टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल अगेन। सो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गया है ना कि फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज सेम। जिस टेम्परेचर में वैक्स मेल्ट किया था दैट वाज 55 डिग्री सेल्सियस, एंड अभी जिस टेम्परेचर में वही मोल्टन वैक्स सॉलिड में चेंज हुआ दैट इज ऑल्सो 55 डिग्री सेल्सियस। आइस के लिए भी जिस टेम्परेचर में आइस मेल्ट करता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और जिस टेम्परेचर में वाटर वापस से आइस में चेंज होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हमने पढ़ा? For a substance, कोई भी substance हो, the melting point of that substance and the freezing point of that substance are the same. For example, melting point of wax is 55 degrees Celsius and freezing point of melted wax is also 55 degrees Celsius. No confusion? Clear? Great. Here, the topic is melting point and heat absorbed during melting for some substances. From this topic, we will continue in the next lecture, which is lecture number 4. तो आज हम लेक्चर नंबर 3 यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आगे लेक्चर 4 को हम इस टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यू हैव सम होमवर्क टुडे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द होमवर्क। टेक अ स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। और भी क्वेश्चन है होमवर्क के, वेरी इजी होमवर्क। मॉलिक्यूल्स विल मैच विथ विच ऑप्शन?
100 डिग्री सेल्सियस इज मैचिंग विथ विच ऑप्शन? 0 डिग्री सेल्सियस विच ऑप्शन? ऑल द टेम्परेचर्स विच ऑप्शन? कैम्फर विच ऑप्शन? मैं हेल्प कर दूं थोड़ा। मॉलिक्यूल्स से बना होता है मैटर। और मैं बता देता हूं आंसर्स, तुम्हें लिखना है लेकिन। 100 डिग्री सेल्सियस ये वो टेम्परेचर है जिसमें वाटर बॉयल करता है। आगे हम लोग बॉइलिंग पढ़ेंगे, लेकिन ये हम कॉमन चीज हम जानते हैं, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीजेस, मैंने अभी भी बताया, इसी टेम्परेचर में वाटर फ्रीज करता है। एट ऑल टेम्परेचर्स, वैसे ये एवापोरेशन मैंने अभी तक बताया नहीं है, आगे एवापोरेशन पढ़ाऊंगा। एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर में चेंज होता है, लेकिन वो फिक्स टेम्परेचर में नहीं हो। एट ऑल टेम्परेचर्स दैट हैपन। इवेपोरेशन पर हम डिटेल में अलग से टॉपिक है, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो इसको अभी टेंशन मत लो, लिख लो। कैम्फर क्या है? कैम्फर कहा गया चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस। मैंने बताया था कैम्फर एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है। इट सब्लाइम्स ऑन हीटिंग, मींस इट विल चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। कैम्फर हो, नैप्थलीन हो, मैंने एग्जांपल्स दिया था। क्वेश्चन 2 वेरी इजी, दिस आई विल नॉट डिस्कस, वेरी इजी। एमसीक्यूज है, देखो मैंने बोला हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारे बुक में है, ये कंसाइज फिजिक्स में है। 4 MCQs, very easy. We have discussed these types of questions. This particular topic on which this question is based on in lecture 1. What do you mean by change of state? ये हमारा क्वेश्चन 3 है। देखो आज 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वीडियो को यहाँ पॉज कर लो, क्वेश्चन 2 का ले लो, ले लिया। अब वीडियो यहाँ पॉज करो, क्वेश्चन 3 एंड 4 का ले लो। What do you mean by change of state? Write the flow chart showing the complete cycle of change of state. तो चेंज ऑफ स्टेट का डेफिनेशन हमने अभी भी पढ़ा, एंड फ्लो चार्ट, वो जो डायग्राम था, फ्लो चार्ट था, पूरे चेंज ऑफ स्टेट का साइकिल दिखा रहा था, उसको बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। एक्सप्लेन द टर्म्स मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये भी आज हमने नोट्स में पढ़ा है, तो यू विल राइट। ओके, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर 4 में। टेक केयर एवरीवन।